So, what is the complete spectrum of the post-pregnancy blue and postpartum depression? I give you 5 highlights. You are crying easily, you are staying angry, you have a guilt, you are disconnected, and you do not know what to do. Then you have postpartum depression signs there. And if Yes. you're prolonging for more than 60 days, then you must consult a therapist, a psychologist beyond your family. किसी की मत सुनो, जाओ ऑनलाइन कंसल्टेंसी लो, जाके लो, बट लो. But I see the higher incidence of postpartum depression in the urban population. Why is that? Welcome, parents, in today's episode of Parenting Prescription. Today, we have a very, very influential psychologist, Reena. And today's episode and today's topic is really close to my heart because वो मुझे भी हुआ है, and I think 80% moms को होता है, but they don't admit. That is post pregnancy blues and postpartum depression. So आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. We'll deep dive into topic, the causes and the issues and the symptoms and how to take professional help and what are the myths around it. Yeah. So welcome, Reena. And I really happy to have you in our podcast in this episode, and I'm really going to enjoy this conversation because, as you know, that this is really close to my heart, and I really want to help mothers through this information. So welcome you on this podcast. Thank you, Dr. Sumitra. I'm very happy that we are talking on this topic of postpartum depression and baby blues because as a psychologist and mom of 2 boys, toddler and a teen, I understand that how much it is important for a mother to be mentally fit. Physically fit is important, very much important, but it is also important that mother needs to be happy, calm, and mentally fit, because if mom is not happy, she cannot keep people happy around her. Not even her kids, not even her happy. To have a happy family and a connected family, it's important that mother needs to be happy. And as the founder of Sar Holistic Wellness, we pursue happy moms, create happy families, and connected children. This is so good and nice motto actually, and the line also. Yeah. Okay. So as you said that everyone is happy after coming after the mother deliver baby, but nobody actually really knows that what mother going through. It should be according to the parents and relatives. ये तो बहुत joyful moment है. Mother should enjoy, but what mother is feeling inside, nobody knows, right? And then it comes to the body changes, hormonal changes, physical changes. The mother is thinking about the birth process which she has gone through. So what is the complete spectrum of the post-pregnancy blue and postpartum depression according to you? Very good question, Dr. Sumitra. देखिए कि क्या होता है कि it's a motherhood and joy. ये ना कंडीशन कर दिया गया है कि if you are becoming a mother, you have to be very happy, which is okay, which is right also. In reality, it is not true. Yes. When you become a mother, emotionally, you are very high. You know, as a mother, you are high. But at the same moment, you're confused also. Now, Yes. what next? क्योंकि कोई भी मैनुअल तो आ नहीं रहा है इसके साथ. There's no manual stated during the pregnancy and after the pregnancy also. When you go to a gynecologist, they will train you on how to eat, what to eat, what exercise to do, what not to do. But nobody talks about the mental health. Like, Yes. you may experience the postpartum depression, you may experience baby blues, and forget about mothers. Nobody talks to the father even that what you exactly have to do after the mother has become, after you both have become parents, you know. And unfortunately, due to lack of awareness, आप notice करेंगे after a boy and girl, a lady and a man become parents, eventually become angry people. रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट आने लग जाता है. देयर इज अ डिस्टेंस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हैं एंड द मैन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड द गर्ल इज नॉट सेइंग. there is communication gap and the child is taken over the life so much.
प्रॉब्लम इज नॉट कि उसको ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कैसे करना है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैंडल कैसे करना है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, बेबी ब्लूज क्या होता है. आई नो, आई रिमेम्बर व्हेन I became a mother in 2009 for the first time. I was 24 years old. Calculate my age now. So what happened exactly? Some relative visited me and she said, baby blues हुए थे. I said, what is that term? मुझे वो term नहीं पता ही नहीं था वो term भी क्या होता है. तो इतना lack of awareness है और वो आज भी है unfortunately. Yes. हम कितना भी लड़कियों को एजुकेट कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी करियर ओरिएंटेड हो गए और कहाँ से कहाँ चले गए, यू वोंट बिलीव आई हैव एडवोकेट्स, आई हैव डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आई हैव प्रोफेशनल्स हु कम टू मी and they do not know they are going through postpartum depression already. इतना lack of awareness है. And as we want to know like what is baby blue and what is postpartum depression, so baby blue is like temporary. Once you become a mother, there are hormonal changes, there are changes in your body, and you experience like sleep deprived you are, you're not connected with the baby sometimes, you're angry most of the times, there is a guilt, and you want to talk to nobody, you want everybody to get out from the room, but you can't say it. अगर वो एक हफ्ता तक रहता है, एक से मैक्सिमम 2 हफ्ता तक, इट्स ओके, एंड देन यू रिकवर एंड यू गेट बैक टू द नॉर्मल इमोशंस एंड एवरीथिंग. बट अगर वो ज्यादा देर रह रहा है, लाइक इट हैज prolonged more than 60 days, 90 days, and even in year, 2 years sometimes it goes on. You're not able to get back to your normal self. You're always crying in the washroom alone. छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जाता है. You get angry very easily. You get triggered. छोटा सा ड्रॉप ऑफ अ पिन पे भी आपको गुस्सा आ जाता है. You have messed up with the relationship with your own husband. आप बात करते हो, whenever you're talking, you guys are fighting. And you have lot of expectations from your husband, but you're not talking about it. You don't want family members to come near to you. You want nobody should touch your baby. And sometimes ऐसा भी होता है कि you find that baby as a burden. You won't believe. ऐसा लगेगा कि इसको भी कोई ले जाए. At the parallel time, you also have a guilt. कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ? ऐसे thoughts क्यों आ रहे हैं? Well, I give you 5 highlights. You are crying easily. You are staying angry. You have a guilt. You are disconnected, and you do not know what to do. Then you have postpartum depression signs there. Yes. And if you're prolonging for more than 60 days, then you must consult a therapist, a psychologist beyond your family. किसी की मत सुनो, जाओ ऑनलाइन कंसल्टेंसी लो, जाके लो, बट लो. Yes. कोई भी तुम्हें कह रहा है तुम पहली बार माँ बनी हो क्या, हमने बच्चे नहीं पैदा किए, कोई भी तुम्हें कह रहा है कि ये तो पागल ही हो गई है माँ बनने के बाद, अब साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, हाँ जाना है. आई एम नॉट सेइंग फाइट विद द फैमिली, आई एम सेइंग कम्युनिकेट इट कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू कोप अप एंड आई नीड हेल्प. प्लीज गो, take your husband with you. Important, take your husband with you. I'm repeating that because आपने फिर भी अपने womb में 9 months रखा है बेबी को. फादर के साथ क्या हुआ है? Now you are father. It's like a news. Drop of a bomb. उनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ है. वो ऑफिस भी उसी तरह जा रहे हैं, उनको घर में खाना भी उसी तरह मिल रहा है, उनकी लाइफस्टाइल में वो दोस्तों से भी मिलेंगे. हाँ, आई एम अ फादर नाउ, एवरीबडी इज कंग्रेचुलेटिंग यू, बट कई बार आप देखेंगे फादर्स कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं. घर आते हैं मोबाइल पे लगे रहते हैं, मदर को नहीं पूछते हैं. एंड कई बार आप देखेंगे वो जापा पीरियड में मदर और फादर को जब अलग कर देते हैं, अलग अलग रूम्स में से सोने को बोलते हैं बिकॉज ऑफ द हाइजीन और रिचुअल्स और व्हाटएवर, तो आप ये देखिए डिस्कनेक्शन बढ़ता ही जाता है. Yes. Because now father has not become a father. The boy has become a bachelor again. Right.
आप रिलेट कर पाएंगे, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप ये रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा कितने केसेस में होता है. Yes. पर मदर के साथ क्या हो रहा है? नाउ शी हैज अ फुल लाइफ, ह्यूमन लाइफ इन हर हैंड्स, इन हर लैप टू रेज. She is been stressing that I have to join back work. Will they take me back in the same position, the position that I left or not? Who will take care of my baby when I'm not around? Who will do the home chores if I'm a homemaker? Who will do my home chores and take care of the baby? I cannot sleep during the night, the whole Yes. night. And now everybody is expecting me to cook, to clean, to take care of the house chores. तो ये सारा कुछ हो रहा होता है, तो ऑब्वियस है कि मदर्स जो हैं वो ट्रॉमेटिक हो जाते हैं. Yes, you rightly said actually. And to be honest, when I became mother first time, I had like similar symptoms of baby blues for maybe first 15 days, 20 days. I was thinking, okay, this is hormonal changes. I'm going through a hormonal change with the birth experience, vaginal delivery wala experience and all those things. I was thinking this, okay, this is pregnancy blues. Everybody says, okay, parents बनने के बाद में ऐसा तो होता ही है. That is a like inbuilt in the society. Because everybody is telling you. हाँ, हमारे अंदर वो मतलब दिमाग में वो बिल्कुल फिट कर देते हैं कि ऐसा तो होता ही है. तुम्हें फील हो रहा है, क्राइंग करने का मन कर रहा है या फिर तुम गुस्सा करने का मन कर रहा है, ऐसा तो होता ही है मदर बनने के बाद में. यू आर नॉर्मलाइज कर देते हैं उसको. Nothing new. It is a common thing of all right. Yes. Then after 15-20 days, it was getting worse only. I was not able to connect with my baby. I was feeling like, okay, I am only doing duty. Or sometimes I felt like extreme thoughts like I throw my baby. Why this baby is with me and all that. Then it clicked into my mind, and honestly, I was not aware of the postpartum depression term. See, I told you. Yes, I did research. I talked to my seniors. Okay, is there anything like this postpartum depression? Then some people who are like psychiatrists, few of my friends, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा होता है. You should take help of a counselor. Then I took the help, and of course it took almost 6 months to get out from that. But this is true actually. All the listeners, please listen to this. That this is true. Baby blues can convert into the postpartum depression, or you might have postpartum depression from beginning, and then you should take help. You should take help. So now coming to the postpartum blues, Reena, that like what is the duration of the postpartum depression? You already mentioned the symptoms. If you want to add some more thoughts on the symptoms, but what is the typical duration of the postpartum blues? देखिए डॉक्टर सुमित्रा, एज पर स्टैटिस्टिक्स 70% ऑफ इंडियन मदर्स एक्सपीरियंस बेबी ब्लूज. ठीक है, बेबी ब्लूज होना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज दैट इज वेरी बिग नंबर एक्चुअली. या इट इज, बट इट इज नॉर्मल बिकॉज आपका जो है ना पूरा प्रोसेस चेंज हुआ है. यू हैव गिवन अ ह्यूमन बर्थ टू अ ह्यूमन लाइफ. इट्स नॉट अ जोक. यू आर रीबॉर्न. इट्स यू आर रीबॉर्निंग एक्चुअली. तो आपका भी एक दूसरा जन्म होता है बच्चे के साथ. आप वो सेम इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे. जस्ट बिफोर दैट मोमेंट you are a different person, and now you are a different person altogether. And we talk about postpartum depression. That is 1 in every 5 mothers we experience. Okay. That's also not a less number. And ये तो वो number है जो registered है data में. So for postpartum depression it is 1 in 5. और ये तो registered मतलब data मैं आपको बता रही हूँ. आप सोचिए कि कितना data होगा जो registered ही नहीं है. हाँ, definitely. Like I think 70% is you are saying the registered data, but I think 90% होगा almost. सबको ही होता है बेबी ब्लूज तो. लेकिन डिप्रेशन सबको नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फैमिली सपोर्ट, बिकॉज समटाइम्स हस्बैंड आर वेरी कनेक्टेड टू देयर वाइफ्स. ऐसा नहीं होता है कि सारे हस्बैंड्स को पता नहीं होता, या पता नहीं भी होता, बट वो इमोशनली बहुत
सपोर्टिव होते हैं, दे आर प्रेजेंट. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर टेलिंग मी दैट व्हेन आई गेव बर्थ टू माई बेबी, my husband was not there. He was traveling somewhere else. And I asked him to come and see me. I said, no, I have something very important to do. ऐसे भी लोग होते हैं. Like husbands do not connect it as a important thing even. Because for them, earning bread and butter for the family is the most important thing because वही सिखाया गया है. But there are some people, there are some husbands who are always there for their wives. मतलब सूटकेस में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है आफ्टर द डिलीवरी वो भी उन्हें पता होता. सो ऑल आर नॉट. यस, दिस नंबर ऑफ केयरिंग हस्बैंड इज वेरी लेस देन हस्बैंड हु आर नॉट मेंटली प्रेजेंट विद देयर वाइफ्स. So talking about the duration, baby blues can prolong for like maximum 30 days or 45 days. बट अगर उससे ज्यादा प्रलॉन्ग हो रहा है, एज आई सेड कि 60 डेज से अगर ज्यादा हो रहा है, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट अ साइकोलॉजिस्ट, टेक अ टॉक थेरेपी और उनसे बात कीजिए. प्रोफेशनल हेल्प लेनी इसलिए जरूरी है कि घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं. अगर वो समझ पा रहे होते तो वो बेबी ब्लूज डिप्रेशन में नहीं जा रहा होता. अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी 5 रीजन मेंशन किए, अगर छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपको गिल्ट रह रहा है, छोटी छोटी बातों पे आप अपने परिवार से लड़ रहे हैं, अपने हस्बैंड से लड़ रहे हैं या अपने बच्चे से डिस्कनेक्टेड हैं, तो यू डेफिनेटली नीड अ हेल्प. राइट. एंड my next question to you will be कि how do you differentiate between the intensity of the post pregnancy blues and PPD? As we say that okay, first like 25 days 30 days तक तो अगर कुछ ऐसा जो आपने 5 चीजें बोली हैं वो अगर हो रहा है तो post pregnancy blue होगा. But is there any other thing that okay, if this intensity is from beginning, so ये postpartum blues नहीं है, ये postpartum depression है? देखिए, जैसे मैंने मेंशन किया कि इंटेंसिटी हाई इसलिए हो जाता है, कई मदर्स आप देखेंगे कि वो अपने बच्चे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं. वो उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये इसने मेरा फ्रीडम ले लिया और ये आया है क्यों, व्हाई आई हैव दिस बेबी, एंड दे वांट टू एक्चुअली थ्रो द बेबी आउट ऑफ द विंडो. और ऐसा कई केसेस में अगर आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे बहुत सारे मदर्स ने अटेम्प्ट भी किया है अनफॉर्चुनेटली. तो ये साइंस एक्चुअली आई वाज अबाउट टू क्रिएट रील, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हाँ माता पूत कपूत हो सकता है बट माता को माता नहीं हो सकती. आवर एल्डर सेज लाइक मदर कैन नॉट बी अ बैड मदर, यू कैन से मदर कैन नॉट किल. तो यही तो कंडीशन करवा दी है. हाँ, बट ये कंडीशन आई रेड वन न्यूज दैट एक्चुअली मैनी न्यूज कि हाँ इस मदर ने अपने न्यूबॉर्न बेबीज 30 डेज के बेबी को मार दिया एंड इस मदर ने ऐसे कर दिया 30 डेज. एक आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी वन मदर लाइक जो बेबी है उसको स्विमिंग पूल में ड्राउन कर दिया. सो दीज आर द केसेस. एक्चुअली दिस इज अ warning sign for the society that okay, these cases are rising. The mother cannot be a bad mother, as our elder says, or mother cannot harm baby unless the mother is going through so much inside that she cannot control herself. Absolutely. Right? That Absolutely. Is the intensity of postpartum. आप ये बताइए डॉक्टर सुमित्रा, आप एक एजुकेटेड मदर हैं, आप एक एजुकेटेड लाइक प्रोफेशनल हैं, यू आर अ डॉक्टर and still you have experienced those issues. Imagine if yes it doesn't I think it doesn't differentiate between the professional or like mother housewife mother. आपको एक्सेस है डॉक्टर्स का, मुझे एक्सेस है डॉक्टर्स का, मुझे एक्सेस है प्रोफेशनल्स का. बट सोचिए जो एक गांव में लेडी रह रही है, जो एक ऐसी जगह पे लेडी रह रही है, गांव में नहीं रह रही, चाहे शहर में रह रही है, बट ऐसी फैमिली में, कंजर्वेटिव फैमिली में रह रही है, जिसकी उसकी बात सुनी, बात तो सोच दूर की सुनने की बात है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है फैमिली में. देयर इज नो एग्जिस्टेंस इन द फैमिली. तो सोचिए वो जो भी करेगी उसके कैरेक्टर पे ही आ जाएगा कि ये इसको समझ रही है. लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उसको हेल्प की जरूरत थी, उसको डायरेक्शन की जरूरत थी. वो तो हमने किसी ने प्रोवाइड ही नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली वो प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि अवेयरनेस
बहुत कम है अभी भी. अवेयरनेस इन इंडिया इज वेरी लो to talk about postpartum depression because it is considered as trauma. It is considered as taboo. कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे हमारी फैमिली में से कोई तो लगेगा कि इनकी बहू पागल हो गई है या इसकी वाइफ पागल हो गई है. You know? I was about to ask that only. Why is this stigma so much into Indian society according to you? क्योंकि आप ये देखिए ना डॉक्टर सुमित्रा, पहले ही बहुत रेयर केसेस होते थे कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, बट नाउ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट, आमिर खान, ईरा खान, दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. बट पहले क्या होता था, मेंटल मीन्स मेंटल, लाइक यू हैव लॉस्ट इट इन योर माइंड. बट जिस तरह आपको कफ कोल्ड कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने टू पॉप अप द पिल. मेंटल हेल्थ के लिए आपका कोई मेडिसिन नहीं होता है टू स्टार्ट विद इनिशियली. वहां बाद में आपके इश्यूज बढ़ जाते हैं तो आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो आपको मेडिसिन दी जाती है टू काम डाउन योर नर्व सिस्टम और ऑल दैट. बट इनिशियली इट इज टॉक थेरेपी, इट इज सीबीटी जो आपको दिया जाता है अंडर डिफरेंट टूल. तो जब मेंटल को मेंटल से एसोसिएट कर दिया गया बहुत टाइम पहले, तो आई थिंक वो निकलने में, उस चीज से निकलने में बहुत समय लग जाएगा. बिकॉज आफ्टर कोविड व्हेन दिस एक्चुअली रेज्ड द बार्स, मेंटल हेल्थ तब हमारा प्रॉब्लम में आया था कोविड के टाइम पे. उसके बाद जो केस पड़े, लाइक इफ आई यूज्ड टू गेट 1 केस इन 2 weeks, नाउ आई गेट 30 cases in 2 weeks. That's the intensity. आगे अभी भी लोग यही कहते हैं कि मैम ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा ना, आप घर में किसी को बताओगे तो नहीं that I'm taking sessions. ठीक है, लेकिन ये है कि अवेयर हो रहे हैं कि अभी हमें बात करनी चाहिए, बट छुपा के ही अभी भी हम बात करना चाहते हैं. नहीं, actually this is true. This is true actually. In Baby Lama, we provide counseling sessions to mothers, and the mothers who come to us, like 90% of mothers, we say okay husband को भी साथ में लेके आओ, but they don't feel comfortable. They say ma'am please मत बताना घर पे, and this is something I'm doing on my own. Don't tell my family member, don't tell my husband, I don't want to take them into the counseling session. That kind of stigma in our Indian society. बात यहाँ पे खत्म होती है डॉक्टर सुमित्रा. मैं आपको बताती हूँ, आई गो टू फर्टिलिटी सेंटर लाइक IVF सेंटर फॉर काउंसलिंग. अब वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है, गायनाकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, सो गायनाकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु विल ट्रीट द डिलीवरी, हु विल टेक केयर ऑफ योर फिजिकल पार्ट्स. बट जो पेशेंट आता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि आई हैव paid money here, now this doctor should be telling me everything. He cannot. You are asking a person who doesn't have that forte or degree or something. Why psychologist is altogether different degree? Yes. Why gynecologist is altogether different degree? क्योंकि ये दो अलग प्रोफेशंस हैं. वो गायनाकोलॉजिस्ट का पूरा सिस्टम ये रहता है कि क्या मेडिसिन देनी है, क्या साइकिल चल रहा है, अभी कौन से फेज में आप चल रहे हैं, और डिलीवरी वजाइनल कि सी सेक्शन होगा कि NICU देना पड़ेगा बच्चे को, क्या है. बट माइंडसेट हमें चेंज करना है कि मुझे काउंसलर की जरूरत है कि मेरे को गायनाकोलॉजी से इन्फॉर्मेशन लेके सेटल डाउन हो जाना है. तो आप एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको भी समझने की जरूरत है कि आपको कहाँ पे किसको कांटेक्ट करना है. Yes. गायनाकोलॉजिस्ट आप जाएंगे, ऑब्वियसली मना नहीं करेंगे कभी भी, एंड इट इज देयर ड्यूटी, जितना उनका कैपेसिटी में होगा वो बताएंगे. बट एट द एंड यू आर डीलिंग विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यू हैव टू गो टू अ राइट पर्सन. Yes, दैट्स इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक इस प्रोग्राम के थ्रू शायद लोग समझें कि किसको कितना इंटरवेंशन चाहिए, उस हिसाब से आप अपना थेरेपी कीजिए. और आजकल तो ऑनलाइन इतना ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं लोग. एंड एट द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन टेक सेशंस. वी आल्सो डू दैट. वी आर मतलब हम तो प्रोवाइड ही वर्चुअल ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज दिस हैज मेड सो इट हैज मेड them to connect with us so comfortably from any part of or abroad. जैसे भी उन्हें करना चाहे वो कर सकते हैं. I think that's the thing.
Right. So there is one single line mothers here whenever they complain, okay मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ, मैं इतना ऐसे डिस्कनेक्ट फील क्यों कर रही हूँ, everybody says this single line that it's hormonal. Why are you cribbing about this? This is hormonal, this is normal. But we know that PPD is multifactorial. There are so many factors play role in the PPD. So could you help us to understand the risk factors and the factors which are causing PPD and which are responsible for postpartum depression? I think we can divide that into three parts, which is social, biological and physical. Yes. ठीक है. So social means जो social आपके ऊपर pressure है एक perfect माँ बनने का. Like you have to be a perfect mother because now you are a mother. You have to Yes. feed the baby properly. You have to make sure that baby doesn't has a fever or anything. You have to be a good wife. You have to ensure that you are a good daughter-in-law in the house. You have to be perfect person in even if you have gone through C-section, or even if you have gone through vaginal delivery, even if you have baby has gone through NICU, does not matter. But you have to fit in that box of perfection. तो एक box बना दिया गया mom के, ये perfect mom box है. अगर आप इसमें fit नहीं हो रहे हो, that means there is a problem with your existence. Problem is with you. हाँ, तुम्हारे अंदर कोई कमी रह गई है तभी तुम इस बॉक्स में आ नहीं पा रही हो. फिट नहीं हो रही. तो ये प्रेशर हो गया, सोशल प्रेशर हो गया. ठीक है. तो फिर फिजिकल प्रेशर है कि आपकी बॉडी में इतने चेंजेस हुए हैं, आपको खुद में सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया. यू आर अ थिन हॉट स्मार्ट गर्ल and having blast in your life, and suddenly all your body parts have swollen and you have lost your hair, you're starting losing hair, pigmentation हो गया, and when you see yourself in the mirror you get scared. Yeah. कि मैं अब Who is this person? Who is this person? तो वो एक आपको स्ट्रेस है, और साथ में आपको वो बेबी भी रेज करना है. बायोलॉजिकल थर्ड, हमें जो हम बायोलॉजिकल की बात Plus करते हैं, physical pain, post stitches pain, physical changes body में. वो तो है ही है. उसके लिए तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं. अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो पेन के आगे है. पेन तो आपको देना ही है, मतलब वो तो आप डाइजेस्ट कर ही लो किसी भी तरह. उसके बाद जो वो प्रोसेस है, ब्लीडिंग हो रहा है, यू नो, एंड यू आर नॉट एबल टू फिट to your clothes, and you have to feed the baby, and your breast is leaking, everything that you are going through, and trauma जो चल रहा है उसके साथ ये भी है कि perfect भी होना है. And the third reason is कि biological, you are sleep deprived. Your hormones are drastically imbalanced. Yes. And the third thing is कि nobody is understanding you. आप कितना भी रो लो एंड आप कितना भी कुछ कर लो, दूसरा इंसान समझ ही नहीं रहा है. हाँ. वो सो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स कम टुगेदर. किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को सारे ही होते हैं, यू नो. So that's how the things, the postpart, these all factors contribute to the PPD. So how does these sleep deprivation, those biological factors you mentioned, with the lack of support, they are making the mother more vulnerable to PPD? Absolutely. आप ये देखिए, अगर हमें 7 घंटे की स्लीप की जरूरत है और मैं पूरी रात में 1 घंटा और 2 घंटा ही सो पाई हूँ, और मैंने बेबी को पकड़ा हुआ, my back is aching, I have gone through a surgery, and the person next to me is like sleeping like anything, not getting up. I need a feeding bottle, or I need to pee, or I need to rest. कभी कभी आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये भी देखा होगा, मदर्स कहती हैं मैम बेबी हाथ में होता है और मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है. और नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हैं तो किचन पर वेट कर रहा है, और अगर बच्चा थोड़ा आपका बड़ा है, जो दूसरा बच्चा है, तो वो स्कूल जाने के लिए वेट कर रहा है. तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बिना रुके करनी है. Absolutely, you are going through all that thing with the existing thing. वो भी आप ही के ऊपर है, और जो ये नया बेबी बॉर्न हुआ है ये भी आप ही के ऊपर है. तो स्लीप डिप्राइव अगर होगी, वो डेफिनेटली, एक नॉर्मल इंसान अगर स्लीप डिप्राइव हो जाता है तो वो अगले दिन चिड़चिड़ा हो जाता है. तो अगर एक मदर स्लीप
deprived back to back, not one night, next 60 days, 45 days, 90 days, 1 year sleep deprived ही रह रही है, तो आप सोच लीजिए कि उसका क्या हाल होने वाला है. How can she be a happy mother? Right. So, और topic I forgot to mention, constant taunts भी आ रहे हैं, judgments. yes, judgment. ठीक है, ये तो सारा दिन सोई रहती है, advice. ये सारा दिन सोई रहती है और बेबी का ध्यान नहीं रखती है. बेबी को टेम्परेचर हो गया, इसने एसी रात को बढ़ा दिया होगा. बड़े बच्चे पे कोई ध्यान नहीं है, वो स्कूल में उसके एकेडमिक स्कोर गिर गए, इनको सिर्फ अपना फोन पे बात करनी है, डॉक्टर से मिलना है. ये मतलब कॉन्स्टेंटली गेटिंग जज्ड फॉर वट एवर शी इज डूइंग गुड. ऐसे भी केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ जो मदर है, उनके खुद के मदर नहीं आ सकते सपोर्ट के लिए फॉर XYZ रीजन, बट जो मदर इन लॉ होते हैं घर में, वो सब पूरा ध्यान उनका अनफॉर्चुनेटली अपने बेटे पे ही रहता है, उसकी डाइट पे, उसके आने पे, उसके जाने पे. और जिसको एक्चुअली आपके सपोर्ट पे चाहिए, जिसको डाइट चाहिए, प्रॉपर रिवाइवल, जिसको खाना चाहिए, जिसको सपोर्ट, जिसको नहाना है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है. कहा क्या जाता है, बच्चा सो जाएगा ना तब तुम भी साथ सो जाना. तो बच्चा जब सो जाएगा तो हम साथ में कैसे सोए? हमें शावर लेना है, हमें शायद बड़े बच्चे के लिए कुछ और चीजें अरेंज करनी है, हमने अपना रूम क्लीन करना है, हमने अपना मी टाइम कुछ एडजस्ट करना है. ये कितना मीन्स, ये बात सुन के मुझे इतना लाइक एंगर इश्यूज मुझे खुद को हो जाते हैं कि जब बच्चा सो जाएगा तुम भी साथ सो जाओ. हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक इज इट पॉसिबल? डू वी हैव अ स्लीप बटन कि दबाया और बच्चा आया और हम सो गए साथ में? We have our own sleep cycle. Obviously, and then you have so much pressure on your head to do list of things that those are pending because of the baby. Right. You know? So I properly belong to a village, and I see village women who are giving birth, and I see in the urban population also, my friends were giving birth, even myself also, but I see the higher incidence of postpartum depression in the urban population. Why is that? Like urban population and not in the rural population? Or देखिए, जो रूरल population, is it true that the incidence of PPD is higher in the urban population and the rural population, and why, if it is true? See, I can't comment on the statistics right now, but all I can comment on my experiences. Yes, people in urban areas are coming more for PPD than rural area. इसके दो कारण हो सकते हैं. One is awareness. उनको पता ही नहीं है विलेजेस को कि किसके पास जाना है, या ऐसे PPD नाम की कोई चीज भी होती है. मतलब आई बीन अ एजुकेटेड पर्सन, मुझे ही नहीं पता था बेबी ब्लूज क्या होते हैं उस जमाने में. तो आई एम अज्यूमिंग इन माय ओपिनियन कि वो अवेयरनेस अभी इतना डाउन डीप गया ही नहीं है विलेज तक कि पता चले कि ऐसा भी कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है या बेबी ब्लूज होता है. आई थिंक वो झाड़ा वगैरह कराने में बिलीव करते हैं कि कुछ हो गया है तो झाड़ा करा लो एंड थिंग्स आर सॉर्टेड. दूसरा चीज कर सकते हैं डॉक्टर सुमित्रा, जो विलेज में सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल, और रिकवरी एंड फूड रिकवरी सपोर्ट बहुत हाई रहता है. मतलब रेस्ट मीन्स रेस्ट. और आप देखिए कि विलेज वुमेन कितनी जल्दी रिवाइव कर जाते हैं. 30 दिन में आई थिंक दे आर बैक टू वर्क, डूइंग हेवी स्टफ, डूइंग एवरीथिंग. तो ये डिफरेंस है, एक तो अवेयरनेस का, और आई थिंक दूसरा सपोर्ट सिस्टम. और एक बच्चा एक के पास, उन्हें पता ही नहीं है बच्चा कितने घरों में और हाथों में जा रहा है. हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज में, अर्बन फैमिली जनरली, हम आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, तो के साथ साथ ही हम बड़े हो रहे हैं, तो हमें समझ आता है कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है. हम अपने आप में बहुत इन्वॉल्व हैं, तो हमें दिखते हैं चेंजेस. आई थिंक इतना समय ही नहीं देख सकें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, या कुछ ऐसा हो भी सकता है. कोई टर्मिनोलॉजी भी होती है जिसको बेबी PPD बोला जाता है. Yes, so that was my original question, that the modern urbanization, the modern parenting, which will
which is like promoting the nuclear family dynamics. Is that is one most important risk factors in causing PPD? देखिए एज अ वुड से कि डायरेक्टली तो हम इसको नहीं कह सकते कि मॉडर्न पेरेंटिंग और न्यूक्लियर फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपीडी। कहीं पीपीडी केसेस तो जॉइंट फैमिलीज में भी हो सकते हैं क्योंकि हाई जजमेंट होता है जॉइंट फैमिली में, सो मेनी जजमेंट्स इन जॉइंट फैमिली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में आप और अपने हस्बैंड हो तो आप फिर भी कोऑपरेट कर सकते हो और एक दूसरे को समझ सकते हो। सो देयर इज नो, वी कांट से न्यूक्लियर में ज्यादा है कि जॉइंट में ज्यादा है। आई थिंक वो जो हमारे फैक्टर्स हमने बताए हैं कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है घर में, अवेयरनेस कितनी है घर में, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं जो मैटर करती हैं कि आपके सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आ सकता है। अगर आपकी फैमिली नहीं आ सकती तो क्या आपके दोस्त आ सकते हैं? दोस्त भी नहीं आ सकते तो कैन यू पे समबडी टू बी देयर विद यू फॉर नेक्स्ट 90 days? तो क्या आपके हस्बैंड इसमें अलाइंड है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व है? तो ये मैटर करता है। अगर हस्बैंड की कि क्या सारा दिन अकेले ही तो है घर, देख लियो, एक बच्चा ही तो पालना है, क्या नैनी पे इतना पैसा खर्च नहीं। सो दैट कंप्लीटली कम्स फ्रॉम हाउ मच सपोर्ट यू हैव एंड हाउ मच अवेयर यू आर। राइट राइट, वी कैन से न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा है या जॉइंट फैमिली में ज्यादा है। ओके, सो like after delivery, of course we have to take help and all if the mother is suffering from PPD, but are there any sign which the mother can notice during the pregnancy and she can be proactive to take help, that okay, I might go through PPD, so I have to prepare myself for that? So are there any sign during pregnancy the parent can notice? देखिए आजकल गर्ल्स जो है ना थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, तो अगर और वो बात करते हैं इस बारे में, तो अगर आपको पहले से एंटी डिप्रेसेंट आपने कभी लाइफ में लिया है या आपने पहले किसी प्रोसेस से गुजरे हैं डिप्रेशन के, तो चांसेस हाई हैं कि आपको पीपीडी हो सकता है, बिकॉज बॉडी हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट डिप्रेशन। तो चांसेस दोबारा भी आपको हो सकता है। सो those mothers who have already gone through a journey should be more careful. And secondly, if not you, but in your family, if your mother, aunties or anybody nearby in the family has gone through that journey and you have seen that journey, so be alert कि अगर मुझे ऐसे साइन आएंगे तो what I need to do next. So these are the things I'm considering. Yeah. और ऐसा जनरली देखा जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि जिनकी मदर्स, जो मदर्स के मदर्स लाइक नानीज, तो अगर उन्होंने ये जर्नी लिया है तो जनरली मदर्स में भी ये जर्नी को मिलता है, बट देयर इज नो प्रूवन स्टडी अराउंड इट। Okay, all right. So as I was suffering in the first, after first baby, there were high chances of in the second baby, right? That's why I had in the second baby also. बट आई थिंक जब फर्स्ट बेबी में अगर आप लॉजिकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, देन प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड विल बी हाई। यस, यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग, बट देन यू आर प्रिपेयर्ड कि अब करना है क्या है। तो इंटेंसिटी वेरीज, इंटेंसिटी में हाई नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे क्या क्या करना है, यू नो। सो एंजाइटी आती कहाँ से डॉक्टर सुमित्रा? सो फियर एंजाइटी कम्स फ्रॉम द अननोन सर्कमस्टांसेस। If I'm on a road, I want to go from Chandigarh to Delhi. If I know the path, if I have a road map, I will not have a fear or anxiety. But अगर मुझे जाना है चंडीगढ़ to Delhi and I am from Canada or some other country and I want to drive, और उसमें जंगल भी आ रहे हैं, उसमें हाईवेज भी आ रहे हैं, I will definitely be scared. However, कुछ होने वाला नहीं है, but scared हो जाऊंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है। So fear of unknown generates the unawareness generates fear and anxiety. तो अगर मुझे पता नहीं है, सेकंड वाले में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जरूर हो रहा है, लेकिन आप अवेयर थे तो इंटेंसिटी कम जाता है उसका। Right. So now coming to the diagnosis part, that of course the PPD diagnosis is a clinical diagnosis. There is no way
to do blood test or any other tests which we can diagnose PPD. So, what are the clinical signs? If you can help us understand कि जो पार्टनर या फ्रेंड्स या फैमिलीज को देखने हैं या मदर को खुद को देखने हैं, दैट दीज आर द की साइंस दे शुड लुक फॉर द पीपीडी डायग्नोसिस. ओके, अगर ये है तो मुझे पीपीडी है ही, मतलब है क्लिनिकल पीपीडी. देखिए, जो एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली आपको 3 साइंस देखने हैं. वो 3 साइंस ये हैं कि पहले जो साथ में आपकी लड़की या जो पार्टनर रह रही थी बिफोर द बेबी, शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, हैप्पी, इन्वॉल्व, इंजॉइंग प्रेशर. मतलब कुछ आप उसे बोल भी देती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. लेकिन अब आप उससे बात ही नहीं कर सकते हैं. आप उससे बात अपनी बात अपने आगे रख, तो लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन रिलेट. सो नंबर 1, यू विल सी अ डिफरेंट पर्सन. आपको फील हो जाएगा कि तो वो इंसान ही नहीं है जिससे हमने शादी की थी. ओके, ठीक है. दूसरी बात ये है कि वो हमेशा आपसे कम्युनिकेट करने भी आएंगे ना तो वो हमेशा रो देंगे. ओके, बात कर ही नहीं पाएंगे. मतलब शी वांट्स टू टॉक बट शी इज नॉट एबल टू, क्योंकि रोना रुकेगा. ओके, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है डॉक्टर सुमित्रा, लेमैन उसमें, कि आप बात करना चाहता है आपका पार्टनर बट बात कर नहीं पाता. कॉन्स्टेंटली उनको रोना आता है और वो हमेशा हर चीज में चिड़चिड़ापन नजर आएगा. छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों में चीजों को उठा के फेंक देना, चीजों को गिराना, यू नो. और मतलब कभी आपने उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना होगा, बट सडनली शी हैज स्टार्टेड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एट टॉप ऑफ हर वॉइस. सो ये बहुत एविडेंट 3 साइंस होते हैं जिसमें आप, अगर आपको ये प्रोलॉन्ग कर रहा है 90 डेज के बाद भी, तो डेफिनेटली बाबा गो टू अ काउंसलर एंड सीक हेल्प एंड सेव योर फैमिली. Right. And after the diagnosis, if let's say somebody is suffering from the PPD, of course they should come to the psychologist and take help. So, what are the steps in the treatment, or what are the steps in the counseling they should know? So, सबसे पहले तो we take a 1-to-1 session. Okay, as a process, we call because mother has to be comfortable, so we have to take her permission if we can have a couple session, because couple session अगर होगा तो ही better होता है. because the other person, patient के ऊपर जो supervisor है उसको पता होना चाहिए ना घर में problem क्या है. Yes. तो अगर तो दोनों लोग इकट्ठे आ जाते हैं, it's nothing like that, it's a game changer. लेकिन अगर मदर कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ अकेले ही ट्रीटमेंट लेना है और मुझे अकेले ही टॉक थेरेपीज करनी है, तो हम बिल्कुल पीछे से शुरू करते हैं. We go back to the child when you were a baby. बिल्कुल पीछे से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि क्या क्या आपके बचपन में हुआ. ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड ट्रॉमास. ओके, तो वहां तक जाके शुरुआत करनी पड़ती है. बाकी आगे जो अकॉर्डिंगली टूल्स एंड टेक्निक्स रहते हैं, जो टेस्ट रहते हैं, वो डेफिनेटली एज पर द इंडिविजुअल वी वेरी देम. ओके, बट है कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट, सेकेंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पार्टनर, एंड थर्ड इज द ट्रॉमा दैट यू हैव गॉन थ्रू एज अ चाइल्ड, एज अ टीन, डज प्ले अ रोल. तो वहां तक जाके हमें डिसाइड करना पड़ता है कि 3 सेशन लगेंगे, 6 लगेंगे, 1 साल चलेगा. लाइक हाउ मच डैमेज हैव मेड is evident from the more you talk. And all I can say is, Dr. Sumitra, if I take 10 sessions, 8 session or 7 on 10 or 8 on 10 mothers come back and say, like, we are feeling so much better, we are feeling so much connected, and we have stopped shouting. Okay. अब मेरी एक रील वायरल हुई थी, 5.4 मिलियन उसमें गई. इट्स अ 6 seconds रील, जिसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि अगर माँ घर पे चिल्ला रही है तो उसका मतलब है कि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है फादर से. तो आई थिंक 5.4 million mothers commented yes on it. तो आप ये देखिए कि तो मदर्स कह रही हैं, वैलिडेट कर रही हैं कि हमें सपोर्ट
नहीं मिल रहा है और हम एंग्री पर्सन नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी वांट टू बी बेटर बट वी डू नॉट नो हाउ. वेरी नाइस, वेरी इसमें नाइस. फादर्स भी थे कि ये true नहीं है, बट फादर्स का जो काउंट है वो बहुत कम है उसमें. तो इफ इट इज 5.4 मिलियन, तो मैं 5 मिलियन भी लूं तो 5 मिलियन मदर्स हैज कमेंटेड यस एंड इट इज ट्रू. So big problem सो आप actually. it is बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और अनफॉर्चुनेटली बात तो ये है कि हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं. बात ही नहीं कर. True, सबसे बड़ी true, प्रॉब्लम क्योंकि true. अवेयरनेस नहीं है. तो आई थिंक ये वहां से शुरू हो जाना चाहिए. जिस दिन आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाले हैं, द डे यू गेट योर फर्स्ट डायग्नोसिस डन, फ्रॉम दैट डे आपकी गायनोकोलॉजिस्ट को बोल देना चाहिए हायर अ पेरेंटिंग कोच नेक्स्ट 60 डेज. फॉरेन में ये बहुत एविडेंटली अवेलेबल होता है, बट हमारे इंडिया में अभी वेरी वेरी रेयर इट इज देयर. लाइक फॉरेन में पेरेंटिंग काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, फादर काउंसलिंग, मदर काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग होती है. But in India, giving a birth means going to a gynecologist, eating your meals right, and then delivering the baby. Mental health का तो कहीं रोल ही नहीं है पूरे उस जर्नी. So that's the problem. And how I know this is very important for the family, for the partner to seek help. And as you said, that mothers come to you and they tell that they are feeling very good after, and they're I feeling can't. much better after the counseling session. So how does how does seeking help will impact the long-term relationship with the partner, with the family, with herself? देखिए, सबसे पहले तो ना जब काउंसलिंग शुरू करते हैं ना, तो पहले सेशन में तो 99.999% मदर्स रो ही रही होती हैं, कुछ नहीं बोलती हूँ, सिर्फ रो रही होती हैं. ठीक है, तो आप सिर्फ बैठ के उन्हें रोने देते हो. Okay. ओके, सो दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ माय सेशन गोज. क्योंकि वो एंड यू मेक देम बिलीव दैट आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम वन ऑफ यू, आई हैव गॉन थ्रू इट, Yes. एंड दिस कैन बी सॉर्टेड. तो जब आपको वो एहसास होता है कि कोई ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हैं जो 100% आपकी बात सुन रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप रो देते हैं. सो दैट्स द ओनली इमोशन दैट यू कम आउट ऑफ. फिर सेकेंड सेशन में जब हम उन्हें बुलाते हैं, आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन द जर्नी स्टार्ट्स. तो उसके बाद डेफिनेटली चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं, उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि मेरा हस्बैंड मेरी बात क्यों नहीं समझता. तो उन्हें बताना पड़ता है कि दैट्स कंडीशन, उन्हें पता ही नहीं कि बात समझनी कैसे है. तो आपको बार बार जाकर बोलना पड़ेगा, उन्हें कम्युनिकेट करने पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, अज्यूम नहीं करना है, यू नो, और अपने लिए मी टाइम लगाना है. मी टाइम की टेक्निक्स क्या होंगी, आपका चार्ट कैसा है. So definitely when mothers are taking frequent sessions and get revived from what they're experiencing, like anger issues सबसे कम हो जाते हैं. उन्हें पता होता है कि react and respond में क्या फर्क है. Like every instance doesn't need a reaction. Sometimes you just sit back on it and it's gone. For example, कभी आपने देखा होगा, कभी एक मेल आती है आपको तड़कती भड़कती, तो आप उसको 2 दिन रिप्लाई नहीं करते हैं. So when you don't reply back to that email, you don't feel even replying. Right? Okay, and just let it go. So that's how our emotions work. Sometimes in the heat of the moment, we always want to answer everybody back. We always want to, react to every situation. So this is the first thing that you learn about your reactions, कि react करना है कि respond करना है. दूसरी चीज जो आप सीखते हैं कि आप तभी अपने बच्चे को और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं जब आप खुश हैं. तो जब आप मी टाइम ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, एक कॉफी के लिए बच्चे को कहीं छोड़ आए हैं, सेफ हैंड्स में विद मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और विद हस्बैंड, और आप सुकून से एक चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट टीवी देख रहे हैं, तो इसमें गिल्ट करने की इतना जरूरत नहीं है. नीड दैट ब्रेक. फोन भी जब बैटरी लो हो जाता है तो काम नहीं ना कर पाएगा, गर्म हो जाता है फोन, तो उसको चार्ज रिवाइव करना ही पड़ेगा. नहीं कर फट जाएगा फोन. तो फोन को चार्ज करेंगे तभी चालू होगा ना. सो दैट्स
हम्म तो ये छोटी छोटी चीजें उनको एक पैटर्न के साथ सिखाई जाती हैं. हम्म And there are hundred of things that we teach them, and over the period of time, slowly and gradually, the results start showing, and that's 100% that result shows. एक राइट. फर्स्ट सेशन के बाद ही आप देखेंगे मदर्स बोलते हैं कि I'm feeling so much light. हम्म There's no magic that has happened, but with the right technique and pattern, we have listened to you. We have made you feel comfortable, and we have given you some strategies and tools and techniques to use them and be a better person for your children, for your family. Right. So now, coming to the family thing and partner thing, how can the family and partner create a safe environment for the mother so that first of all they don't go to the PPD mode and they don't go into PPD itself, or and this is the preventive that we can create some environment. And if the mother is going through PPD, the second question is that how the parent and family can help her to come out from it. देखिए सबसे पहले ना पेरेंट्स पे तो हम बाद में जाएंगे. सबसे पहले जो पार्टनर है ना आपका, जो फादर ऑफ द बेबी है, उनको ये समझना बहुत जरूरी है. जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं उनको प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके वाइफ ने एक ह्यूमन बीइंग को जन्म दिया है. जब वो रो रही है या कंप्लेन कर रही है या चिल्ला रही है, डोंट कॉल हर ड्रामा, डोंट कॉल हर नेम्स कि तुम ड्रामा कर रही हो और तुमने तो पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, दुनिया की पहली माँ बनी हो. बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन हर हेड. शी हैज लॉस्ट हर सेल्फ इन द प्रोसेस. उनका पूरा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया है. जॉब पे जाने का प्रेशर है, कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है उसका प्रेशर है, घर में वो अगर वो है तो टू बी अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ होने का प्रेशर है, और बेबी के लिए टू बी अ परफेक्ट मदर होने का प्रेशर है. एंड पेरेंट शी हैज टू गिव हर बेस्ट टू द चाइल्ड. तो प्लीज थोड़ा सा जब आप घर आ रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, गो स्ट्रेट टू योर वाइफ एंड टेल हर कैन आई टेक केयर ऑफ द बेबी एंड यू कैन टेक रेस्ट. इतना ही बहुत है. आप इतना बोल देंगे ना तो भी बहुत हो जाता है. तो सब एज अ पार्टनर, ठीक है आपका बहुत इंटेंस जॉब है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू ब्रिंगिंग ब्रेड एंड बटर टू द टेबल, बट आई हर्ड इट इन नीता अंबानीज इंटरव्यूज. शी सेड कि आप कितना भी बड़ा पर्सन बन जाएं, टू मिस्टर अंबानी ही सेड, शी सेड कि कितने भी आप बड़े इंसान बन जाएं, बट यू कांट एस्केप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर. Of course. तो आई थिंक जो इंसान, जो फादर ये छोटी सी चीज समझ जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप किचन में जाके खाना बनाने लग जाओ या होम चोर्स करने लग जाओ, बट जहां भी वो भी करो अगर कर सकते हो तो वो भी करो. वो सेकेंडरी है. उसके लिए आप दोनों मत करो, आप हायर कर लो. बट जो इमोशनल सपोर्ट एक फादर दे सकता है ना, वो मदर इन लॉ दे सकती है, ना आपका ब्रदर दे सकता है, ना आपकी खुद की माँ दे सकती है. एज अ फादर, एज अ पार्टनर, जो सपोर्ट आपको देना है वो आपको ही देना है. यू कांट एस्केप दैट. आपका एक प्यार 10 मिनट आके बैठ जाना, बात करना और सिर्फ सुन लेना, बात ना भी करो, 10 मिनट सिर्फ सुन लो आज क्या हुआ. तो आप बहुत स्ट्रेस में है ऑफिस में, लेकिन पूरे 24 घंटे में आप 10-15 मिनट उस इंसान को दे सकते हैं जिसने आपके दोनों के लिए एक बेबी को जन्म दिया. देयर इज अ न्यू लाइफ व्हिच हैज बीन बोर्न एंड शी इज जस्ट आस्किंग फॉर दोस 10-15 मिनट डे. उतना तो आप दे सकते हैं, इतना जस्टिफाई तो आप कर सकते हैं. नहीं डेफिनेटली. हाँ, डेफिनेटली. लेटर ऑन कमिंग टू द फैमिली, देखिए बहुत मुश्किल होता है इंडिया में. द फैमिलीज आर सो कंजर्वेटिव, और मैं इसमें बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी, बिकॉज मैं देखती हूँ जितने भी मदर्स आते हैं इतने परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फैमिली के अंदर जो डिस्प्यूट्स इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं वो इतने हाई होते हैं कि
समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, और सारा प्रेशर आप मानेंगे कहाँ निकलता है बच्चे पे। हम्म इतना प्रेशर होता है कि आप ये सोचिए कि ऐसे भी मदर्स आते हैं कि वो बोलते हैं मैंने अपने 7 महीने के बच्चे को इतनी जोर से चांटा लगाया कि पूरा हाथ छप गया उसके। और ऐसा और होता है। इट इज नॉट आई एम टेलिंग यू अ फिल्मी स्टोरी, आई एम टेलिंग यू एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ मदर्स। हम्म और रोते रोते बोलते हैं कि मेरा पूरी रात मेरी रोते रोते निकली कि मैं कैसे इंसान बन गई हूँ। I am हाँ been having a 7 months old baby and the impression did not go for 2 days. Look how हम्म traumatic it is. हम्म तो आपको क्या करना है फिर? तो आपको गैप बनाना है, आपको बाउंड्री सेट करनी है। नो हम्म मीन नो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झगड़ा करो और घर में लड़ाई का माहौल रखो, बट अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना, अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपका राइट है। सबसे पहले आप बात करो, हम्म हस्बैंड से बात करो, फैमिली से बात करो, सबको अपनी बात समझाने की कोशिश करो। हम्म बहुत अच्छा होगा अगर सब समझ जाएं। हम्म अगर कोई नहीं समझ रहा है, then you have to take a stand for yourself and for your baby. I हम्म suggest कि फैमिली काउंसलिंग लो। हम्म ठीक है, कभी कभी आप आपस में नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पे रोल आता है काउंसलर का। हम्म आप उन्हें इन्वॉल्व करो। तब भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो टेक एक्शंस, प्रोटेक्ट योर बेबी। क्योंकि हम्म सारा टाइम अगर आप गुस्से में हैं, और पहले 6 साल में बच्चे का 90% ऑफ द ब्रेन गेट डेवलप्ड, यस तो अगर वो सारा दिन लड़ाई झगड़े और ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप सोच रहे हैं ये छोटा है तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप 1000% गलत गलत है। हम्म फ्रॉम डे फ्रॉम द डे व्हेन बेबी इज अ सेल, वहां से हम्म वो समझना शुरू कर देता है। ये तो हमारी हम्म में बताया गया है ना, यस जब अभी मैंने अपने मॉम के वूम में ही सीख लिया था कि कैसे चक्रव्यूह में जाते हैं। तो आप तो ये समझ लीजिए कि बच्चा सब समझ रहा है, सब देख हम्म रहा है। आप हम्म देखिए, कई बच्चे सोते ही नहीं है रात को और जिटर्स ऐसे शेकी शेकी होते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनकी बॉडी तो एब्जॉर्ब कर रही है, वो तो समझ हम्म रहे हैं, वो तो रिएक्ट हम्म कर रहे हैं। कई बच्चे हम्म आप देखेंगे, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ऐसा फ्रॉन फेस। हम्म और कई बच्चे आप देखेंगे एनजाइटी और बहुत गुस्सा करते हैं, और हमेशा टैंट्रम शो करते रहते हैं। तो कहाँ से आता है सब कुछ? हम्म हम कहते हैं ना बेबीज आर बॉर्न प्योर, तो वो सारे एंग्री इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं बच्चे में? पेरेंट्स He has absorbed from the environment, not हम्म only from the parents, from the हम्म entire environment of the house. हम्म आप बच्चे के सामने अपनी मदर इन लॉ की चुगलियां कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या अपने मेड के साथ अपने फ्रेंड्स के लिए गॉसिप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं सीख रहा, बच्चा 1000% सीख रहा है। हम्म कैसे हमें बैक बाइटिंग करनी है, कैसे दूसरों को बिलिटल करके एंजॉय करना है, खुश होना है, ये सब वो हम्म सीख रहा है। सीख और वो हम्म आने वाले समय में आपके साथ भी करेगा। राइट ठीक है, राइट तो राइट ये दैट्स हाउ एवरीथिंग मैटर्स इन द होम, एंड इट्स बिगिंस फ्रॉम योर पार्टनर। फैमिली तो यस सेकेंडरी आती है, प्राइमरी इज योर पार्टनर। यस सो पार्टनर से मैं अपना स्टोरी थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। सो ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी आई थिंक यही था, आई थिंक 1 मंथ फैब बॉर्न है मेरा बेटा, एंड मार्च में तो कोविड आ ही गया था, मतलब उस टाइम पे जी कोविड एंड लॉकडाउन लग गया था मार्च में, तो कोविड टाइम पे। So after delivery, as Indian household, the same, to be honest, the conservative thinking that I should not eat this, I should not eat that. Kind of my in-laws were saying, okay, don't cover the head, don't come out, just ये वो, मतलब proper like पंखा traditional नहीं वाला thing. चलाना। हाँ, जी। and even being a, they know that I'm a doctor, still they were enforcing me to do all those things and all those eating things and all those things. But luckily, my husband Ashish, who was like a firm pillar beside me and who took care of me, he said no.
Whatever she wants to eat, she will eat. Whatever she wants to do, she will do. Whatever she wants to wear, she will wear. You cannot force on her. All right. And still, of course, I had postpartum depression. That time also, he used to say, "Okay, I'm sitting here right in front of you. You just do blah blah blah. Whatever you want to. You want to shout. You want to cry. You want to slap me. You can do that." So I think ये तो that support. हजारों में एक ही होगा जो आपको मिले हैं, मुझे लगता है. I know. I'm so lucky actually having him. So he was like, okay, you want to slap me, you want to hit me, you can do that, and you can take out all the frustration on me, and देखिए, इतना ही just इंसान बोल देगा, अगर आपको इतना ही सामने वाला बोल देगा ना, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. yes. इतना बोलने की जरूरत है. आप थोड़ी ना मारोगे जाके, Of गुस्सा course, करोगे, of course, but यू नो. that will take out all the emotions. I could, I used to cry like for hours in front of him, and he used to take care whole night. He used to take care of my son, and I used to sleep in the other room. He was like, "Okay, express kar do milk, and then give it to me. I'll take care of the baby. You sleep." So he वाओ. made sure that, okay, I'm having every care I need emotionally, physically, biologically, everything. Still, I had some symptoms. Maybe that was biological, or maybe due to some thing was going on in my body. But I took help. But from the family side, from the partner side, I got strong support from my husband, and I really tell this to all the parents out there, all the partner out there, all the mothers out there. Please help your partner, not just mother actually. Father also go through postpartum depression, because some good father, let's say my husband. So in this delivery, after delivery, my daughter was not leaving me at all. Like, she was like so clingy to me. Like, I had to put her to sleep, everything I had to. Then he was in depression, that he cannot help me, that the way he imagined during the pregnancy, that I will help you this, I'll work whole night, and I'll keep baby beside me, and I'll feed baby, you can take rest. All right. So that's how he planned after delivery. But opposite happened, and then he got into depression, that, okay, I am not able to help you. So it just, both फीलिंग the ऑफ partner, they हेल्पलेसनेस. should help each other. They should be openly communicate every emotion whichever is having. Sometimes we as a mother, we hide feelings, and we don't ask for help. We feel frustrated inside, and we feel that, okay, somehow, with some magic, the samne wala will understand our emotion, and then the samne wala will respond on the emotions. No, सबसे बड़ा you प्रॉब्लम have भी to वहीं पे ask होता for help. है. यस, आस्क फॉर हेल्प, ये सबसे बड़ी चीज है. अगर आपने अपने ही पार्टनर से हेल्प नहीं मांगी, तो फिर उस पे आप गलती नहीं निकाल सकते. देखिए, नहीं वो नहीं, भी हाँ पहली बार फादर बने हैं, वो भी पहली हाँ बार इसी जर्नी में है, तो कैसे समझेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इश्यूज हो रहे हैं. तो बात तो करनी पड़ेगी. तो आप ये सोचे हाँ कि वो अपने आप समझ जाएं और जंप करके सब कुछ एक टर्न अराउंड हो जाए. आपने, तो मैं रिपीट करूंगी, बेबी को रखा है 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, उनके लिए तो न्यूज की तरह है कि यू आर अ हाँ फादर. हाँ हाँ रिस्पेक्ट को फील करें, इमोशन कनेक्शन फील करें. ये नहीं हो पाएगा जब तक आप बात नहीं करेंगे, और बात करने से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं. yes, बहुत चीजें open सॉल्व communication होती is हैं. very very important. आई थिंक व्हेन आई completed 40 days फॉर माय सेकंड बॉय, वी वेंट फॉर अ कॉफी डेट, एंड आई वाज सो ईगरली वेटिंग. बिकॉज हमारे घर में नहीं अलाउड था कि 40 days के पहले आप जाएं. एंड I did everything that my in-laws told me to do, because I am very health conscious person. So I thought कि मैं ऐसा कुछ ना कर लूं जो मेरी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, और लेटर मुझे उसके लिए सुनना पड़े या कुछ एक्सपीरियंस करना पड़े. So my both baby got delivered very healthy and very nicely, and 40 days when I completed that journey, and we happily went for
a coffee date, and we had good time, and our family is very very supportive, and they said okay, now you guys can go. अब सब पूजा वूजा सब हो गई है, सो जाओ. तो ये बहुत जरूरी है, एज अ टीम आप बिल्ड करें ना अपनी फैमिली. Yes, yes. तो बहुत जरूरी है कि आप दूसरे की अनकही भाषा समझ जाएं, बट भाषा का इस्तेमाल करें, बात करें, and करना then पड़ेगा. हाँ. then things will get better. Yes, Right. yes. That's- As you said, and your motto also, happy mother, happy baby. So, if we want to tell the listeners that, okay, if you don't take help, let's say you're suffering from postpartum depression, how it will, of course, broadly every mother knows कि अगर मैं ठीक नहीं रहूंगी तो मेरा बेबी ठीक नहीं रहेगा, मतलब मैं केयर नहीं कर पाऊंगी. बट इफ वी कैन अंडरस्टैंड पॉइंट वाइज पॉइंट कि अगर आप ठीक नहीं हो, आपकी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है, तो बेबी पे क्या असर पड़ेगा, बेबी की केयर पे कैसे असर पड़ेगा, डेवलपमेंट पे कैसे असर पड़ेगा, ओवरऑल हेल्थ पे कैसे असर पड़ेगा. देखिए, मैंने पहले बताया जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है ना, इसका कोई पीरियड स्पैन नहीं होता. जब तक आप हेल्प नहीं लेते, जैसे आपने बताया कि जब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ अभी भी चैलेंजेस हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग भी जा सकता है. तो अगर आप इसे एड्रेस ही नहीं करते तो क्या करेंगे, आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं होंगे तो आप ना ओवर थिंकिंग प्रोसेसिंग में आ जाते हैं. तो आपके अंदर थॉट्स लगातार चलते रहते हैं जो बंद ही नहीं होते, क्योंकि आपने हेल्प की ही नहीं और आपने उसको सॉल्व ही नहीं किया छोटे स्पैन में था. तो अभी क्या हो रहा है, आप एक एंग्जियस मॉम बन गए हैं. आप हर चीज करने से करते हैं, हर चीज करने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये गलत हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ये सारे ही आपकी एनर्जी है, जो आपका एंशियसनेस है, आपका एंगर है, आपका ओवर थिंकिंग है, और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है. आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, आप उसको अच्छा देखती हो. ऐसा भी होता है कि आप बेड पे लेटे 3 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं, आपका एहसास भी नहीं होता. ओके. तो दैट डैमेज comes to yourself, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है. एज एन इट लिटरली स्टार्ट ईटिंग योर हेड, योर टाइम, योर एनर्जी. तो अब इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, आप जॉयफुल मूड में नहीं रहते, तो इसमें हमारा एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी किया गया, स्ट्रेट फेस एक्सपेरिमेंट, जिसमें कंप्लीटली दिखाया गया एक मम्मी के जो एक मदर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, इसमें अभी लैंग्वेज आई ही नहीं है, कोई भाषा नहीं आई है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से बच्चा कैसे एंशियस हो रहा है, कैसे हैप्पी हो रहा है. सो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है. ओके, तो ये आप अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका एक बच्चा कंप्लीट कॉन्फिडेंट हैप्पी बच्चा बने, टैंट्रम प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द जर्नी है बचपन की, लेकिन वो टैंट्रम की इंटेंसिटी क्या रहेगी वो आपका एंगर डिसाइड करता है. कैसे आप हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आप खुशी नहीं है तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाने से भी सुनेंगे तो आप मारेंगे. और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मार खा खा के ही बड़े होते हैं, और फिर जब वो मार खा खा के बड़े होते हैं तो वो आगे भी यही साइकिल चलाते हैं. वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, वो अपने पे गुस्सा निकालते हैं, वो ऑफिस में भी गुस्सा निकालते हैं, वो रिलेशनशिप्स में भी गुस्सा निकालते हैं. और इंटेंसिटी कोई नहीं है गुस्से की, ना हाई लेवल एंगर करते हैं. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द फादर्स यू विल सी दे आर सो एंग्री, दे जस्ट शाउट टू शट एवरीबडी डाउन इन द हाउस, के चिल्लाएंगे और सब डर के चुप कर जाएंगे. तो ये सब आप ऐसे, वो फादर कौन था पहले, वो वही वाला बच्चा था छोटे होते जिसको सिखाया नहीं गया कि एंगर को हैंडल कैसे करना है. तो उसने देखा कहीं ना कहीं कि चिल्लाने से चीजें सॉल्व हो जाती हैं. तो ये धीरे धीरे आपको सिखा दिया. फादर थोड़ा बॉर्न पैदा हुए थे इस इमोशन के साथ, कहीं ना कहीं से तो सीख के आए ना वो, या उन्होंने अपने फादर से सीखा, या उन्होंने अपनी माँ की मार. राइट. पावर प्ले करना सीख लिया, जो बड़ा है, जो पावरफुल है, उसी का चलेगा. Right. My last question would be, prevention is better than cure. So if we see this line and we apply this line during the pregnancy, there are some preventive measures the mothers can take, the parent can take, so that they
there are lesser chances of going into postpartum depression. What are those steps they can take? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, बट आई थिंक अवेयरनेस के साथ आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि अगर हो जाता है तो मुझे करना क्या है, अगर ये साइन है तो क्या है, ये बेबी ब्लू है, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये एपिसोड देख रहे हैं या माँ वाले हैं या कोई आपके लाइफ फैमिली में ऐसे है जो प्रेग्नेंट है, तो प्लीज उन्हें बोलिए कि एक पेरेंटिंग काउंसलिंग जरूर लें। Okay. Family counseling and parenting counseling must be taken by all the couples who are going to be parents. सबसे पहले तो मदर काउंसलिंग अलग होती है और फादर काउंसलिंग अलग होती है, लेकिन कंबाइंड कपल काउंसलिंग भी जरूरी होती है कि अगर आपकी वाइफ सर्टन वे में रिएक्ट कर रही है, तो अगर वो रियलाइज नहीं कर पा रही है कि उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एटलीस्ट यू कैन रियलाइज इट, बिकॉज आप तो आप your sanity is still working. So you can address it, convince her to take to a doctor, and when you are convincing each other, you're not calling each other mental or a gone case. You're happily accepting that this is your case and we together can come through it. तो मेरी advice रहेगी as a prevention measure कि make yourself aware and take a counseling session. जैसे कि आप एक डिनर पार्टी पे जाते हैं, वीकेंड डिनर करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, 4-5 हजार मिनिमम आप स्पेंड करते हैं, उससे हाफ प्राइस में आपका काउंसलिंग हो जाता है। प्लीज डू टेक इट। एक ड्रेस आप ड्रेस वर्थ 8,000, 9,000, 10,000 rupees because social media is not allowing you or the culture is not allowing you. Please spend a little money, 2, 3, 4,000 on your health so that you have a happy family and happy life. Right. Thank you so much, Reena. It was really incredible conversation and really enjoyed this conversation. If you can say a few words as a takeaway message for all the mothers out there, all the parents out there, that will be really helpful. So, Dr. Sumitra, मेरा सब मदर से यही कहना है कि हम ना बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि हमारा बच्चा परफेक्ट बने, कॉन्फिडेंट बने, काम बने, सबसे आगे रहे और हर चीज अचीव करे जिंदगी में। बट आपके वो ना आपका फाउंडेशन हो। तो जब मैं मदर्स को कहती हूँ कि आपके लिए सेशंस आपको लेने हैं, दे विल नॉट टेक सेशंस, बट दे विल ओनली बी एनकरेज टू टेक सेशन टू देयर चिल्ड्रन। तो पहले आप अपने आप पे काम करो। अगर आपने हर थेरेपिस्ट हर मदर को सूट नहीं करता, यू हैव टू फिगर आउट योर, और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच हो जाती है, आप प्लीज कट डाउन किसी और चीज पे कर लो। सेशंस अगर आपने ले लिए हैं तो उसे कंटिन्यू करो, मिडवे मत छोड़ो। ये सबसे स्पेशली मदर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक थेरेपी सेशन, तो पहले तो आपने लेना ही है। अगर आप मदर है, एटलीस्ट लाइफ में एक थेरेपी सेशन जरूर लो, एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो है क्या। ये किसी किताब में नहीं दी है, ये किसी गूगल पे नहीं मिलने वाला है, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। एक प्रोफेशनल से हेल्प, एक सेशन लाइफ टाइम में जरूर लो, ठीक है। अंडरस्टैंड क्यों सेशन लेना जरूरी है, तो आपको पता चलेगा क्या क्या आपके चेंजेस आएंगे। दूसरा, आप बच्चों के लिए मार्केट जाते हैं, बच्चों के लिए टॉय ले आते हैं, आप कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आप बच्चों के लिए अच्छा खाते हैं। घर में भी कुछ बनेगा खाएंगे तो पहले बच्चों के लिए बनेगा, फिर आप खाएंगे। टेक योरसेल्फ अहेड ऑफ देम। पहले आप अपने आप को हो, पहले आप अच्छा खाना खाओ, पहले आप अच्छा रीडिंग करो, और बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। Right. For example, if I want my child to read, I have to start reading. If I want my child to go and gym to be fit, I have to start doing it. Yes. If I want my child to be smiling and happy always, I have to show him this. Then only he can learn. Right. तो पहले अपने आप पे काम, 90% अपने आप पे काम करना है, 10% बच्चे पे, क्योंकि वो 90% आपसे देख के सीख रहा है। Motherhood is about showing, not teaching. Yes. तो ये अगर आपको समझ आ जाती है ये छोटी सी बात, तो आप देखेंगे कि आप जंग जीत चुके हैं ऑलरेडी। Okay. कि मेरा यही कहना है कि मदरहुड, yes, it is incredibly beautiful,
बट अगर आप ही उस पे हमेशा कर्टन आउट करके रखेंगे, उसे ढक के रखेंगे, तो आपको ब्यूटीफुल लगेगी नहीं कभी भी, वो डरावनी ही लगेगी हमेशा, ओके। स्ट्रेसफुल ही लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ब्यूटीफुल रहे जर्नी, तो उस पे काम करो। बिना हम्म काम के कुछ नहीं होता, अपने आप हो जाएगा ना। ये जो इंडियन मेंटेलिटी है मदर्स की, हम्म अपने आप हो जाएगा, हम्म अपने आप कुछ नहीं होता। यू हैव टू हम्म। पुट इन एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटीफुल। Nicely said, nicely said. Thank you so much. It was so amazing conversation and I really, really enjoyed it. Thank you so much again for coming to this podcast episode. Thank you so much, Sumitra. And I'm very glad, Dr. Sumitra. Actually, you have been candid about how you have gone through a postpartum depression and you're tackling it and you're managing it. Most people don't talk about it. And that's a very unfortunate. Like, even if I'm aware, I will not talk about it. So at Hmm. least you're talking about it, you're spreading awareness, and you're talking to people to talk about it. So I Hmm. hope and I believe that this message goes to lot and lot of people around us. And people should start taking actions. आप देखिए, तो हमें ना धीरे-धीरे आप देखेंगे लोग सोच कहने लगे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास Hmm. पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है, बट खुश ही नहीं है। खुश नहीं दिखेंगे आपको, हँसते हुए लोग बहुत कम दिखेंगे। तो आप Yes. एपिसोड की ज़रिए ये जो खुशी बाँटने लगे हैं, आई थिंक इट विल रीच टू लॉट ऑफ पीपल एंड इट विल हेल्प पीपल टू बी मोर हैप्पियर। Yes. I hope so. सो I ऑल hope so. ब्लेसिंग्स। I hope so. That is the main motive behind this episode. And I don't feel ashamed of talking about my postpartum depression. Everywhere I take session, every time I take session, I just tell my story about the postpartum depression. I took help. I don't feel ऐसे कि हाँ. And out there, all the mothers, I would request you, feel free to reach out us, feel free to reach out Reena for the counseling session. And as Reena said that, okay, whenever you want to take help. Don't think about it. Don't drag it because the more you drag, the more problem will वर्स happen only, या worsen only. It will not resolve by itself. And the beyond, if you cross that one line of the friends and family, you took help and now it is not resolving, that is the point you should really really take help and consider it like an emergency. मैं already I already tell parents this, that there are, of course, the physical emergencies are different, but these two things I always tell, the breastfeeding issues and the mental health issues are emergencies. So don't hesitate to take help for those, because अगर आपने emergencies treat नहीं किया है तो emergencies complications बनने में time नहीं लेती है. एब्सोल्युटली। आई थिंक ये छोटी सी बात अगर हम समझ जाए तो मोस्ट ऑफ द फैमिली इश्यूज, इवन डाइवोर्सेस विल कम डाउन, यू नो। Yes, yes. तो यही है कि आप ये बात समझें और एक्शन लें।